Hello everyone, my name is Bhavika Thanvi and I have been fortunate enough this year to have secured All India rank of 100. Uh, I would like to thank you all for attending this seminar. I'm a little nervous today because I've never addressed so many people together. So I will tell you about my strategy as well. But as Sir said, not everything works for everyone and somehow this strategy seemed to work for me this year. But I can also guarantee that if I had used the same strategy this year, I wouldn't have cleared the prelims that was there, that happened a few days ago, especially because of CSAT. So I won't be able to guide much on that front. So if you have questions with respect to that, please address it to your teachers who are much more experienced in CSAT and prelims. I have written only 2 prelims, so my experience over there is relatively limited. I would also like to keep this session relatively informal and casual. So आप लोग किस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हैं? इंग्लिश, हिंदी या फिर दोनों? मिक्स बाइलिंगुअल? ओके ठीक है. तो अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हो आप जरूर पूछिएगा एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ देम पक्का से. आई हैव प्रिपेयर्ड काइंड ऑफ एक फॉर्मेट जिसके थ्रू मैं आपको एड्रेस करना चाहूंगी ताकि आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग. Starting with my journey, I graduated in 2020. August 2020 में मेरा college खत्म हुआ था and I've done my graduation in psychology itself and my college is from Jaipur as well. So my schooling and college years were in Jaipur. And उसके बाद, while I had thought of joining a coaching or preparing for the civil services पहले से ही, and मैं 2019 में actually vision ही आई थी and मैंने यहाँ पे पता करने की कोशिश करी थी क्या coaching का system है. I visited many coaching centers. And unfortunately 2020 में COVID hit, so I had opted for online coaching. So I don't really have an experience with respect to offline coaching. उसके बाद 2020 August से I started my preparation in full swing. I was studying 8 hours, 10 hours, trying to do 10 hours to be honest, never touched 10 hours. But I attempted prelims in October of 2021 and I could not clear it. And ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का गैप था. जो कट ऑफ था वो 89 के आसपास था एंड मेरे अराउंड 70 बन रहे थे. तो क्लोज टू 20 मार्क्स का डिफरेंस था एंड आई हैड रियलाइज्ड कि बहुत मेजर गैप GS1 में आ गया है एंड आई हैड टू कवर इट अप. थैंकफुली CSAT में ये सीन नहीं था. आई वाज कंफर्टेबली क्लियरिंग CSAT इन अपर 80s and 90s. So I had focused mostly upon GS in the next 1 year. उसके बाद I attempted and I cleared prelims this year. However, मेरे बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर से क्लियर नहीं हुआ है. I've scored in 90s, lower 90s only. Just cleared it, I think, by 4-5 marks. But तो there is a factor of luck, which I would like to say to everyone. अगर मे भी 2-3 क्वेश्चन मेरे और गलत होते तो नहीं होता क्लियर. So never forget that luck plays a big role. And मेहनत सब लोग कर रहे हैं. I'm sure आप सब भी कर रहे हैं. And एक luck का फैक्टर रहता है इसके अंदर. उसके बाद आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, आई प्रिपेयर्ड माय ऑप्शनल एज वेल एंड मैंने GS के लिए कोचिंग ली थी बट आई डिड नॉट टेक कोचिंग फॉर माय ऑप्शनल बिकॉज इट वाज माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड आई वाज रिलेटिवली कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट. That was my journey for prelims, mains and then interview. If you have any questions up till now, please ask. Otherwise I'll continue with my strategy and my mistakes. Okay. नहीं सर सर. Hi Lopa, how are you? Yeah, we are friends from school. Yes. Okay. It's a very good question because I have a little bit of an unpopular opinion on this. I do not value newspapers as much as I value current affairs magazines. Because through newspapers, you'll get to know the news. But the static portion behind it, you'll have to search for it again and again. So I prefer reading the newspapers in like half an hour or 40 minutes. And then I used to focus on the current affairs magazine. So the monthly magazines I used to do. And I tried to revise them. I was not very consistent with it. So the PT 365 and Main 365 were the actual magazines that I revised 2 or 3 times. And that's how I managed it. But I focused on current affairs throughout the year. But जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा था, जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है, मेंस पास आ रहा है, तब मैं ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स को दे रही थी और उससे पहले मैं मेरे स्टैटिक की पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी.
एंड सर से भी मेरी बात हुई थी पहले, तो सर ने भी बोला था कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक का एक बैलेंस बनाना पड़ता है. I started in August 2020 only. I started reading the newspaper way back in college क्योंकि एक हैबिट तो बिल्कुल थी नहीं मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो बनाने की कोशिश चल रही थी. एंड अगस्त के बाद से आई बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली, बट मैं न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती कि वो एडिटोरियल्स एंड ऑल आपको हेल्प करेंगे. इंटरव्यू स्टेज पे बहुत मेजर हेल्प होगी, बट प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए वो इतना हेल्पफुल मेरे को पर्सनली नहीं लगा था. एंड ये चीज़ ऑल द सबके लिए डिफरेंटली अप्लाई होगी. थैंक यू. आई वुड लाइक टू टेल यू जो मुझसे गलतियां हुई है, बिकॉज अगर वो गलतियां आप लोग नहीं करेंगे तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा. सो द फर्स्ट मिस्टेक एज आई सेड कि मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया था. एंड आई यूज टू गिव 5 to 6 आवर्स हर दिन करंट अफेयर्स को. मैं मैगजीन लेके बैठी रहती थी, उसको रिवाइज करती थी, और एक मैगजीन नहीं, मैं पहले डेली के करंट अफेयर्स का एनालिसिस पढ़ती थी, वीकली पढ़ती थी, मंथली पढ़ती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक ही अटेम्प्ट में निकालना है बस किसी भी तरह और रैंक लानी है. बट दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो गए थे. सो एडिंग ऑन टू दैट, फर्स्ट मिस्टेक वॉज टू मच टाइम फॉर करंट अफेयर्स. सेकेंड वॉज बहुत ज्यादा मैंने फोकस कर दिया था रिसोर्सेज पे. तो मैं जैसे अगर पॉलिटी है, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ती थी, उसके बाद मैं क्लास नोट्स पढ़ लेती थी, फिर जो कोचिंग मटेरियल होता है वो भी पढ़ लेती थी, प्लस करंट अफेयर्स. तो रिविजन किसी का नहीं हो पाता था. तो उससे मेरी थर्ड गलती हुई कि मैंने रिविजन को टाइम नहीं दिया. एंड मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी बट वो रिवाइज कभी नहीं कर पाई, तो वो मेरा कंटिन्यू एक जो आपको रिविजन चाहिए होता है ताकि आप रिकॉल कर पाए बेटर, वो नहीं हो पा रहा था. उसके बाद द नेक्स्ट मिस्टेक वाज मॉक्स. आई वाज टोल्ड कि 100 मॉक्स लिखो, वो बेस्ट रहेगा. 100 मुझसे कभी हुए नहीं, तो मैंने 60 to 70 मॉक्स दिए प्रीलिम्स के लिए, और मैंने एक भी मॉक को रिवाइज नहीं करा. तो आई यूज टू राइट मॉक्स, मतलब मैंने खुद को 15 दिन में 15 मॉक्स दिलवा दिए कि किसी भी तरह देने हैं, और उनको रिवाइज नहीं करा. सो उनकी यूटिलिटी मेरे लिए खत्म हो गई थी कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे मॉक्स को, यू नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ देम. आपको बस एक हैबिट बन रही है टेस्ट देने की. तो दीज वर माई 3-4 बिग मिस्टेक्स दैट आई मेड, दैट आई वुड रिकमेंड टू यू कि आप लोग मत कीजिए. एंड जो रिविजन है फॉर मी पर्सनली प्लेड अ वेरी बिग रोल, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिकॉल की थी. आई कुड नॉट रिकॉल. मैं पढ़ लेती थी, मुझे याद ही नहीं रहता था. मैं 1 महीने बाद देख रही हूँ, मुझे नहीं याद मैंने क्या पढ़ा है. एकदम से मेरे लिए नया मटेरियल लग रहा था मेरे को वो. So revision was the key for me in my second attempt, and it worked in my favor, thankfully. So okay. What's your name? तपोनिष्ठा. So तपोनिष्ठा is asking कि how to limit resources किस extent तक लेने चाहिए. तो एक मैं बेसिक बुक रखती थी. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग पॉलिटी एग्जाम्पल, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आई यूज टू रीड. उसमें भी नॉट ऑल द चैप्टर्स, सिर्फ जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वही. एंड उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड, उसके अंदर ये था कि जो मेरे क्लास नोट्स थे मैं उनको रेफर कर रही थी, एंड दैट वाज इट. उससे ज्यादा मैंने रिसोर्स नहीं बढ़ाया सेकेंड अटेम्प्ट में. एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन अप टिल नाउ? फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू रिकमेंड एनीथिंग, क्योंकि मुझसे आज तक स्पेक्ट्रम नहीं हुई थी, तो मैंने मेरे रिसोर्सेज कुछ ज्यादा ही लिमिट कर दिए थे. तो मैं सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के गई थी कि ठीक है इसके भरोसे मैं जाऊंगी. एंड मेरे GS1 में बहुत एवरेज स्कोर आया है, एंड आई थिंक दैट हैज प्लेड अ रोल इन इट. दैट वाज माय फॉल्ट. एंड इनफैक्ट हिस्ट्री वाज वन ऑफ माय वीकेस्ट सब्जेक्ट्स. तो जो प्रीलिम्स का पेपर था, मैं मोस्टली हिस्ट्री के क्वेश्चन आते थे और मैं उसको करती थी स्किप नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हिस्ट्री इज नॉट a place that I would like to recommend anything because I'm not the person for it. I'm so sorry. Any other question anyone has? Yes. For PSIR? सी एक बार आप शी इज आस्किंग वेदर शी शुड टेक कोचिंग फॉर PSIR अगर उसका बैकग्राउंड है थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी से रिलेटेड. तो इसमें मैं बोलूंगी एक बार आप सिलेबस देखिए एंड देखिए हाउ मच डू यू नो, कितना कोरिलेशन बैठ रहा है. एंड इफ यू नीड कोचिंग एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग को, बिकॉज आई नो दैट कोचिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ही गो फॉर इट. अदरवाइज लुक फॉर गाइडेंस ऑनलाइन, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड फॉर साइकोलॉजी, क्योंकि सिलेबस ओवरलैप मेरा भी बहुत ज्यादा नहीं था. So online help and guidance would be much more useful in my opinion. Any other question? So the yes. Especially for prelims,
माई मिस्टेक वॉज कि मेरा रिविजन नहीं हुआ था, तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस करा रिविजन पे एंड रिकॉल पे। तो रिविजन में पहले कैसे कर रही थी कि मैंने रीड कर लिया और मेरे को लग रहा था मेरा रिविजन हो गया, बट आई रियलाइज कि देर इज दिस टेक्निक साइकोलॉजी में कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। तो मैंने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी कि मैं एक्टिवली रिकॉल कर, अब मतलब इसके अंदर मैं ये करती थी कि आई हैड अ डॉग ड्यूरिंग दैट टाइम, मैं उसको बिठा के उसको पढ़ा देती थी कि ये मेरा रिकॉल हो रहा था। सो दैट वाज वन थिंग आई डिड। और समटाइम्स मेरा भाई वगैरह अगर कोई भी सुनने को तैयार होता था मेरी बात, तो उन लोगों को, आई थिंक दैट वर्क फॉर मी, क्योंकि उससे मेरे को बेटर मेमोराइज हो रहा था। See, I'm not I think this is not the right platform to say it either, but I'm not a huge supporter of coachings either. मतलब जरूरत के अनुसार आप यूज कीजिए उसको as much as you need. I did not have guidance, so it was very useful to me because मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी नहीं था जिसने ये कभी एग्जाम अटेम्प्ट करा था, तो मेरे लिए वो यूजफुल थी। बट एक कोचिंग तक लिमिटेड रखिए, एंड देन टेस्ट सीरीज के लिए यू कैन डेफिनेटली टेक मल्टीपल कोचिंग्स, बट अदर for test series. For test series, even I took multiple coachings. Yes. हाँ. That is a very good question. She's asking कि strategy क्या रखनी चाहिए, and I am a believer कि strategy बहुत सारी होती है, and हर एक strategy हर किसी के लिए काम नहीं करेगी. The strategy should be flexible. तो मैंने मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे डिसाइड करी थी, मैंने टॉपर्स वीडियोस देखे, जो चीज़ मुझे थोड़ी रिलेटिवली इजी लग रही थी कि मैं इंप्लीमेंट कर पाऊंगी, उसको मैंने इनकॉर्पोरेट करा, एंड मैं मंथली टारगेट्स रखती थी। आई डिड नॉट कीप ऐसे डेली और वीकली टारगेट्स, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो उसके बाद मैं फ्लेक्सिबली उसको चेंज करती जाती थी कि अच्छा पॉलिटी खत्म नहीं हो पा रहा तो उसको 1 मंथ और एक्सटेंड कर लिया, या फिर कोई सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो गया, तो उसमें मैं केप्ट माई स्ट्रैटेजी। इट वॉज अ लिटिल वेक, बहुत डिफाइंड नहीं थी मेरी स्ट्रैटेजी अनफॉर्चुनेटली। Coming on to my next topic, which I had thought about talking about strategy, तो उसमें मैंने यही करा था, I also watched a lot of toppers videos, and जो चीज़ें मेरे को relevant लगी थी मैंने वो नोट डाउन कर ली थी, and I tried to implement it. एंड मतलब ये नहीं था कि मैंने एक बार में स्ट्रैटेजी बना ली, मेरे को अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई तो मैंने उसकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी निकाल ली थी एंड उसको मैं इनकॉर्पोरेट करती गई। बट आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी इज द की इन स्ट्रैटेजी, कि आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है, जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की गलती थी कि मैंने खुद को फ्लेक्सिबल नहीं रखा था उसके अंदर, कि अगर डेडलाइन सेट कर दी तो भले ही कुछ दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है वो फिर भी पढ़ना है, बट सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं खुद को थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग टाइम दे देती थी बीच बीच में, कि इफ आई एम नॉट एबल टू रीड इट आई विल नॉट रीड इट, मैं उसको अगले दिन ट्राई करूंगी। नेक्स्ट इज नाउ, कैन आई यूज द बोर्ड? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं सबको बताना चाहती हूँ वो है कि ये एक स्ट्रेस की लॉ होती है जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द यर्कीज-डॉटसन लॉ। इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट, बट मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्ट्रेस बहुत हाई था, इस एंड पे था, एंड स्ट्रेस अगर आपका लो होता है या ऑप्टिमल होता है तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। सो इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने ये सोचा था कि मैं मेरे स्ट्रेस को कंट्रोल रखूंगी। ऑल्दो एक अटेम्प्ट हो गया था तो रियलिटी ये हुई थी कि स्ट्रेस बढ़ गया था, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं किसी तरह उसको कम रखने की कोशिश करूं टू अचीव दिस पीक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, दैट इज गुड स्ट्रेस। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी अपने जैसे पढ़ाई करते हैं, यू गिव योर सेल्फ ब्रेक्स, थोड़ा थोड़ा टाइम खुद को दीजिए, खुद की फैमिली को, फ्रेंड्स को दीजिए, एंड डू टेक ब्रेक्स, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज दिस एग्जाम। दिस एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड मैं मानती हूँ ये एक बार क्लियर होने के बाद बोलना बहुत ईजी होता है, बट आई थिंक अगर मैं ये नहीं फॉलो करती अपने सेकेंड अटेम्प्ट में तो आई वुड नॉट हैव क्लियर्ड इट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना भी मेरी एक गलती थी। Then the next thing is some basics on prelims, then mains, and then interview. For prelims, my focus was upon mock tests again. तो मैं mock test के लिए क्या करती थी, अलग अलग कोचिंग के टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो मैं ईयर राउंड तो मॉक टेस्ट नहीं दे पाती थी, बट वो लोग डेली 5-6 क्वेश्चंस डालते रहते हैं उसके ऊपर दैट यू कैन अटेम्प्ट, तो मैं उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करती थी ताकि मेरा प्रीलिम से टच नहीं छूटे, इवन इफ आई एम स्टडीइंग फॉर मेंस, एंड वो हार्डली दिन के 10-15 मिनट्स लेते थे। देन द सेकेंड थिंग आई डिड वाज टुवर्ड्स प्रीलिम्स मैंने मेंस का पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। आई डिड नॉट स्टडी 3 months मेंस का कुछ भी, चाहे वो ऐसे ऑप्शनल कुछ भी हो,
एंड उसके अंदर मैं मॉक्स अटेम्प्ट करती थी, बट वो मॉक अटेम्प्ट करने के बाद मैं खुद को 2-3 दिन देती थी जिसमें मैं वो सिर्फ रिवाइज करती रहती थी. एंड दैट वाज माय बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स. एंड बीच बीच में मैं जो स्टैटिक नोट्स है वो रिवाइज करती थी, बिकॉज आई हैड हर्ड समवन सेइंग कि अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका प्रीलिम्स निकल सकता है. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज नाउ, बट एटलीस्ट इन दैट अटेम्प्ट इट डिड स्टैंड टू बी ट्रू. फिर उसके बाद फॉर सीसैट ये था कि मेरा क्लियर तो हो गया था सीसैट, बट एक डर था कि इसकी डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है. और मैथ्स एक मेरा वीक पॉइंट है, मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता था, बिकॉज मैंने मैथ्स 10 तक पढ़ी है और ह्यूमैनिटीज लेने का एक मेरा मेजर रीजन था कि मेरे को मैथ्स नहीं करनी है अब अपनी लाइफ में. और बायो में भी जाऊंगी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स आ जाएगी. तो आई टुक अप ह्यूमैनिटीज. अब मैथ्स से टच छूट चुका था, तो आई यूज टू डू PYQs, क्योंकि यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पेपर आई डोंट थिंक एनी वन कैन सेट. तो आई डिड PYQs एंड वो डिफिकल्टी इंक्रीज होती हुई लगी. तो फिर मैं जो मॉक टेस्ट है सीसैट के वो 2-3 दे देती थी. एंड जैसे कि ये डेली क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही डिफरेंट चैनल्स रन एक सीसैट की टेस्ट सीरीज, डेली के 2-3 क्वेश्चंस या 5-6 क्वेश्चंस. आई यूज टू फॉलो देम फॉर सीसैट, ताकि एक थोड़ी कंटिन्यूटी मेंटेन हो. बट आई डिड सीसैट ओनली 2 to 3 months बिफोर प्रीलिम्स. उसके पहले आई डिड नॉट फोकस अपॉन इट. उसके बाद फॉर मेंस, वंस आई क्लियर प्रीलिम्स, ऐसा लगता है कि अच्छा 5 दिन में पढ़ना शुरू कर दोगे, 5 दिन का ब्रेक लेके, 2 दिन का ब्रेक लेके, लेकिन एक एंग्जाइटी रहती है. एंड बिकॉज मैं मेरे आंसर की से कंपेयर करके मुझे लग रहा था मैं बहुत एज पे हूँ, तो मुझसे वैसे ही पढ़ाई नहीं हो पा रही थी कि क्या पता क्लियर हो, क्या पता नहीं हो. सो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कि मेरे को साइकोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, दैट इज माई ऑप्शनल. तो मैं ऑप्शनल पे फोकस कर लिया था मैंने, कि अगर इस साल नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तो काम आ ही जाएगा. तो आई फोकस्ड अपॉन ऑप्शनल फॉर अ मंथ, एंड द नेक्स्ट 2 months आई गेव टू GS, जिसमें मैं बीच बीच में रिवाइज कर रही थी ऑप्शनल, बट मोस्टली मेरा GS फोकस था. इन दिस ड्यूरेशन व्हाट आई रेफर टू वर द स्टैटिक नोट्स अगेन. एंड स्टैटिक नोट्स के साथ साथ मैं जो दूसरी चीज रेफर कर रही थी, एट दिस पॉइंट मेंस 365 आने लग गई थी. तो मैं उस पर छोटे छोटे नोट्स बना लेती थी डिजिटली साइड में, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मार्क कर ली. एंड उसमें कई वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होते हैं. तो वैसे तो कई लोग बोलते हैं आप साल भर से बनाने लग जाओ, बट आई थिंक वैल्यू एडिशन पॉइंट्स तभी यूजफुल हैं जब आपका मेंस पास आ रहा है, क्योंकि सबसे रीसेंट डेटा जो होगा वो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा. तो मैं मेंस 365 में एक स्टार बना लेती थी वैल्यू एडिशन पॉइंट्स में. एंड 1 month बिफोर माई मेंस मैंने उनको एक नोटबुक में लिख लिया था. सो आई थिंक 15-20 पेजेस के वो बने थे, एंड दैट वाज माय रिविजन मटेरियल फॉर मेंस. मैंने कोई बहुत शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, एंड मैंने जो क्लास नोट्स थे उनको भी शॉर्टन नहीं करा था, ना मैंने कोचिंग नोट्स को शॉर्टन करा था. मैं जिसको भी रेफर करी थी, एंड दैट वाज आल्सो अ मिस्टेक, बिकॉज मेरी अभी तक जितने लोगों से बात हो रही है हु हैव स्कोर्ड द टॉप रैंक्स, दे ऑल हैड मेड नोट्स. एंड नोट्स आर द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स, क्योंकि आप जब खुद लिख के रिवाइज करते हैं वो बेटर याद रहता है. एंड ये मैंने मेरे साइकोलॉजी में देखा, मेरे बेटर मार्क्स इससे से आए थे क्योंकि खुद लिख के रिवाइज करा हुआ मटीरियल था वो पूरा. देन फॉर द इंटरव्यू स्टेज व्हाट आई हैड डन वाज कि मेंस के बाद मैंने बोला बहुत पढ़ाई हो गई, अब 1 महीना तो मैं सिर्फ एंजॉय करने वाली हूँ. तो आई गेव माई सेल्फ 1 month. मैं फ्रेंड से मिलती रही एंड रिलैक्स करती रही, क्योंकि प्रीलिम अगर नहीं भी होता तो प्रीलिम्स में थोड़ा टाइम है, मैंने ये सोचा था. एंड उस टाइम में आई डिड नथिंग एट ऑल. एंड देन रिजल्ट आने वाला था, जब ऑलमोस्ट आई थिंक 1 month ही बचा था रिजल्ट में. दैट्स व्हेन आई पिक्ड अप कि यार देखते हैं मेरे नाम का मतलब क्या होता है, डू आई नो द करेक्ट थिंग. क्योंकि मतलब घर पे पूछा हुआ होता है सबने पेरेंट्स से, लेकिन एक बार पता तो पड़े नेट क्या बोलता है इस बारे में. एंड आई रिसर्च अबाउट जयपुर, राजस्थान, एंड जो भी मेरे डैट से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स थी. एंड देन द रिजल्ट केम, एंड जब रिजल्ट आता है तभी आई थिंक फिर से डेडिकेटेड पढ़ाई हुई इंटरव्यू की. सो आई स्टडीड फॉर इंटरव्यू, एंड उसमें ऐसे था कि एवरीवन हैड रिकमेंडेड कि यू रीड बुक्स. आपकी एक वाइड रीडिंग होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, बिकॉज दे टेस्ट योर पर्सनैलिटी एंड नॉट योर नॉलेज. एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चंस में इंटरव्यू में बोला था कि आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड आई स्टिल रिसीव्ड गुड मार्क्स फ्रॉम द बोर्ड. तो आई थिंक यू नीड टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, ऑल्दो वो 3-4 महीने में नहीं होगी. सो इफ यू कैन हैव अ हैबिट ऑफ वाइड रीडिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो काफी हेल्पफुल रहेगा. कि आप वाइड रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, बट रादर आप बुक्स पढ़ लो. फॉर एग्जाम्पल सेपियंस हो गई, या फिर आई यूज्ड टू रीड, मैंने सेपियंस पढ़ी थी, एनिमल फार्म पढ़ी थी, माय फादर हैड रिकमेंडेड आयन रैंड की बुक्स कुछ, वो पढ़ ली थी. सो फिक्शन नॉन फिक्शन का एक मैंने मिक्स रखा था. सो दैट कैन बी वन थिंग. एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? ही इज आस्किंग कि मैं जीएस और जो मेरा ऑप्शनल है साइकोलॉजी, उसमें से मैं दोनों को साथ में लेके चल रही थी, और या फिर मैंने एक बार में एक ही चीज पे फोकस करा. तो आई थिंक ये बहुत एक सब्जेक्टिव आंसर होगा, बट
मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर नहीं पाती हूँ, तो आई नीडेड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 2 to 3। तो मैं दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ती थी। जैसे सुबह के स्लॉट में हिस्ट्री, क्योंकि मतलब वो एक स्लॉट है जिसमें सबसे कम नींद आएगी, तो हिस्ट्री पढ़ लो। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट में साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग था, तो वो पढ़ लिया। एंड देन थर्ड स्लॉट में यूज्ड टू रीड जो शॉर्टर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, जिसमें इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा और करंट बेस ज्यादा आएगा। तो दैट इज हाउ आई डिवाइडेड माई डे यूजुअली, बट वो फ्लेक्सिबली चेंज होता रहता था बेस्ड अपॉन माई मूड। एनी अदर क्वेश्चन? सो शी इज आस्किंग व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन को कैसे मैंने मैनेज करा। तो मैं एक बार अगर सपोज मैंने सब्जेक्ट खत्म कर लिया, से इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने खत्म करा है, तो आई यूज टू गिव इट अ ब्रेक कुछ दिन का। फिर मैं पीवाईक्यूज देखती थी उसके, एंड फिर रिवाइज करती थी, ताकि मेरा थोड़ा सा फोकस्ड रिविजन हो पाए। ये देखती थी कि क्या थीम्स रिपीट हुई है। उस रिविजन में मैं एक बार रीड करती थी और एक बार किसी को पढ़ाने की कोशिश करती थी, अगर कोई मान जाता था तो। एनी अदर क्वेश्चन? एनसीईआरटीज, आई हैड रेफर टू एनसीईआरटीज। मैंने अगस्त में प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू करी थी, बट आई थिंक अराउंड फेब्रवरी से आई वांटेड टू स्टडी। तो मैंने क्या करा था कि मैंने एनसीईआरटी सारी मंगवा ली थी कि 6 से लेकर 12 तक की मैं सारी पढ़ूंगी। बहुत टाइम वेस्ट करा था उन पे, बट आई रेड ऑल द एनसीईआरटीज क्योंकि मुझे मेरा बेस क्लियर करना था। तो आई वुड रिकमेंड जो आपके वीकर सब्जेक्ट्स हैं, आप उसकी एनसीईआरटीज डेफिनेटली पढ़ो। एंड जैसे ज्योग्राफी है, उसमें 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत रेलिवेंट है, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक रीडिंग रखी जाए तो वो बेटर रहेगी। हाँ। हम्म। 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 एग्जैक्टली। तो वो पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटीज का रिवीजन कैसे करा जाए। मैंने एनसीईआरटीज को कभी रिवाइज नहीं करा, मैंने उनको सिर्फ बेस बिल्ड करने के लिए यूज करा था। एंड एक बार जब मैंने पढ़ लिया था, फिर मैंने उनको आज तक वापस खोल के नहीं देखा है। तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करती थी, अपने नोट्स को रिवाइज करती थी, रादर देन एनसीईआरटीज का रिविजन। थैंक यू। फॉर मेन्स, सो मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो एक डेली आंसर राइटिंग का हमारा इनिशिएटिव चलता था। तो आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर विद इट, बट मैं हफ्ते में 1 या 2 आंसर लिख लेती थी। एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी हेल्पफुल, कि अगर स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी आदत थी, देन आई थिंक फिर मेरे को रियलाइज हुआ टुवर्ड्स मेंस कि मेरी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने टॉपर्स कॉपीज निकाली, एंड उसके अंदर टेस्ट में क्वेश्चन भी डले हुए ही होते हैं। तो मैं क्वेश्चन का आंसर खुद लिख के देखती थी, कि अगर मान लो क्वेश्चन है चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एआई, तो मैं खुद देखती थी, फिर मैं देखती थी कि टॉपर ने आंसर क्या लिखा है, और उसको कंपेयर करूँ कि ऐसा क्या है मेरे आंसर में मिसिंग जो उन्होंने लिख रखा है, और उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँ। एंड दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर आंसर राइटिंग। एग्जैक्टली, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी एज वेल। एंड स्पीड पे मैं आज तक कंट्रोल नहीं ला पाई हूँ। मैंने 3 महीने बहुत प्रैक्टिस करी है एथिक्स के पेपर में। आई दिस स्टिल हैपेंड कि जो लास्ट की 5 क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने थे, वो मैंने 7 मिनट्स में अटेम्प्ट करे हैं। बट थोड़ी बहुत आई थिंक जब आप कंटिन्यूस मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लिखते हैं, तो थोड़ी स्पीड में इंप्रूवमेंट आ जाता है। एंड कुछ लोग बोलते हैं 7 मिनट्स फॉर द 10 मार्क आंसर, या फिर 11 मिनट्स फॉर द 15 मार्क। वो मैंने काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करी थी, बट देर वॉज दिस स्ट्रैटेजी ऑन यूट्यूब, आई थिंक बाय मिस्टर अभिजीत यादव, जिन्होंने कहा था आई थिंक 1 आवर में या फिर 70 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन। वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए ज्यादा काम कर रही थी, सो आई ट्राइड दैट थिंग आउट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो शी इज आस्किंग दैट कैसे मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको अटेम्प्ट करा, क्योंकि उसमें काफी करंट बेस्ड और एनालिटिकल चीजें होती है जो स्टैटिक में इतनी कवर्ड नहीं होती, और स्टैटिक का कोई स्टैंडर्ड मटेरियल भी नहीं है उसके लिए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आई हैड अ डीप इंटरेस्ट, तो मैं उसको पढ़ती रहती थी करंट अफेयर्स मैगजीन्स के थ्रू। एंड उससे काइंड ऑफ बेस सा डेवलप हुआ था दिमाग में, उसके मेरे पास नोट्स नहीं थे इतने। एंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, बट जब मेंस आने वाला था, एट दैट पॉइंट मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत थी। तो फॉर एग्जाम्पल क्वाड न्यूज में चल रहा था, तो मैंने क्वाड के ऊपर एक पेज पे बस थोड़े से नोट्स बना लिए थे, कि अगर कोई भी क्वाड पे क्वेश्चन आया, या फिर क्वाड के आसपास का भी कुछ क्वेश्चन आया, तो मैं एटलीस्ट ये लिख के आ जाऊंगी उसके अंदर।
and that was my strategy. And GS3 में आए थे काफी questions, like there was one on cellulose I think, and एक कोई vaccines पे था जिसके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं था. So in those questions जो cellulose वाला था वो मैं खाली छोड़ के आ गई थी क्योंकि वो covered कहीं से भी नहीं था. So I think एक दो question छोड़ना है still okay because it I don't know what to say on that. Sorry. तो मैंने ऐसे राइटिंग तो ऐसा कोचिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी थी एसेज लिखने की, बट क्योंकि ऐसे में आपको नॉलेज बहुत वाइड चाहिए होती है तो वो लिखे नहीं जाते हैं स्टार्टिंग में. जब प्रीलिम्स हो गया था तब एक बार कोर्स खत्म हो चुका था मेरा पूरा, तो दैट इज व्हेन मैंने अपना फर्स्ट प्रॉपर ऐसे लिखा आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. तो उसमें GS 1 2 3 4 को इनकॉर्पोरेट करा था. एंड बिकॉज ऐसे में थोड़ा सा मतलब मेरे स्टाइल से लिख रही थी काफी ज्यादा, आई वॉज नॉट फॉलोइंग कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस उसकी. एंड एक मैंने बस ब्लॉग पढ़ा था, आई थिंक काफी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, अनुदीप शेट्टी सर का ऐसे राइटिंग पे, उसको मैंने थोड़ा फॉलो करा था. एंड क्योंकि मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था एंड थैंकफुली इस साल एक ऐसे तो ऐसा था जो स्माइल पे बेस्ड हैप्पीनेस पे था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल राइटिंग वाला पोर्शन रहा था. एंड बाकी GS4 काफी हेल्प करा मेरे को बिकॉज अब फिलोसफिकल ऐसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आई थिंक उसमें GS4 वाला जो पार्ट है वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है एज कम्पेयर टू GS 1 2 3. तो आप उसको धीरे धीरे यू कैन स्टार्ट राइटिंग, यू कैन स्टार्ट विथ राइटिंग 1 या 2 पेज का ही ऐसे एंड देन इंक्रीज इट. दैट इज व्हाट वर्क फॉर मी, सो यू कैन ट्राई इट टू इफ इट वर्क्स फॉर यू. एनी अदर क्वेश्चन? मैं उसके बारे में एक सेकंड सोचती हूँ. इवन आई डोंट नो द डिमांड ऑफ यूपीएससी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता व्हाट हैज वर्क, बट आई थिंक द डिमांड इज कि आप एक रेलेवेंट आंसर लिखें. जैसे एटलीस्ट फॉर मेंस आई कैन आंसर, प्रीलिम्स का तो आई रियली डोंट नो व्हाट इज द डिमांड. मेंस में आई वुड से कि आप रेलेवेंट आंसर लिखे. एक ना उनके कहीं पे पॉइंट लिखा होता है सिर्फ रेलेवेंट चीजें इंक्लूड करो. फॉर एग्जाम्पल एक कोई फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन है तो आप सब कुछ फार्मिंग पे मत डालो, बट राइट ओनली ऑन द थिंग दैट दे आर आस्किंग अबाउट. तो मैंने वो करा था कि कुछ मैंने इरेलीवेंट नहीं यूज करा था उसके अंदर. एंड एक क्वेश्चन था आई थिंक बुल पे एंड लायन पे कहाँ पे है, तो वी कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट रेलेवेंट चीजें इंक्लूड करो, भले ही आपका एक ही पेज भर रहा है या 1.5 पेज ही भर रहा है. तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, और एटलीस्ट इन माई केस दैट टर्न्ड आउट टू बी बेटर. इंटरव्यू के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कॉन्वर्स करें लोगों से, कि एक तो क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इंटरव्यू में, एंड अपन लोग इतना मतलब आइसोलेटेड रहते हैं, सो मतलब काइंड ऑफ भूल सा ही जाते हैं कि कैसे बात करते हैं लोगों से, स्पेशली इन अ फॉर्मल सेटिंग. बिकॉज मतलब एटलीस्ट फॉर मी ये था कि मैंने कभी किसी से फॉर्मल सेटिंग में इतनी बात नहीं करी थी. तो आप एक तो लोगों से बात करें, स्पेशली दोज ऑफ योर पेरेंट्स एज या फिर उनसे जो बड़े हैं, क्योंकि जो बोर्ड में बैठे होंगे वो उनकी एज के आसपास के होंगे, एंड हमें उनका माइंडसेट समझना भी जरूरी है. फिर उसके बाद मैंने ये करा था, मैं बुक्स, आई हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग, तो मैं कंटिन्यूस रीड करती रहती थी. एंड मुझे कुछ लोगों ने रेकमेंड भी करा था रीडिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन टच विथ 2020 टॉपर सत्यम गांधी. सो ही हैड रिकमेंडेड मी कि रीड करते जाओ एंड फोकस अपॉन बिल्डिंग योर बेसिक्स. अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपसे कुछ भी पूछेंगे इंटरव्यू में तो आप आंसर कर पाओगे, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू कैन वर्क अपॉन. हाँ, क्या क्वेश्चंस थे वो? हाँ. सो मेरा जो इंटरव्यू था उसके अंदर आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे चेयरवुमन ने पूछा था, दैट वाज प्रीति सुदन मैम का बोर्ड. वो पूछा था जयपुर में जीका वायरस के केस के बारे में, एंड मेरे को उसके बारे में नहीं पता था कि वो कब हुआ था एंड कहाँ हुआ था. तो आई हैड टोल्ड हर ऑनेस्टली कि मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में. एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, हनुमानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है माइग्रेंट इशू उसके बारे में, तो उसका भी मेरे को आंसर एग्जैक्टली नहीं पता था. तो आई हैड सेड कि इस बारे में भी मेरे को आइडिया नहीं है. एंड वन क्वेश्चन दैट डिड स्टिक आउट फॉर मी, दैट वाज उन्होंने मुझसे मेरी सरनेम का मतलब पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थानवी. एंड मुझे नहीं पता आज तक कि थानवी का मतलब क्या होता है. मैंने गूगल पे सब जगह सर्च कर लिया था कि मेरे को इसका आंसर नहीं पता था. तो आई थिंक यू नीड टू हैंडल इट विथ ऑनेस्टी, एंड कभी कभी यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट एज वेल. लाइक इन माई केस सर ने बोला था कि मैंने कहा मेरे को सर पता नहीं है इसका मतलब, मैंने पूछा है मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से बट मुझे आंसर नहीं मिला.
तो सर सेड कि आजकल तो गूगल पे सब मिलता है, गूगल कर लेते। सो आई सेड सर मेरे को तो गूगल भी मेरे नाम का मतलब नहीं बता पा रहा। So that was a funny moment and it worked out well. If you're honest, I think it's okay. Any other questions? Hmm. 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 Um, okay. हाँ. Okay. सो ही इज आस्किंग कि मैंने कैसे 8 to 9 आवर्स वाला टारगेट अचीव करा। क्या वो धीरे धीरे इंक्रीज करा? तो मेरी आदत थी कि मैं कम से ज्यादा करूंगी। सो आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स एक दिन, फिर उसके बाद हो सकता है अगले दिन मैं 1 भी घंटा नहीं पढ़ूं, बट फिर थर्ड डे आई ट्राई टू डू कि मैं 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़ लूं। तो ग्रेजुअली आई इंक्रीज इट। द चार्ट वॉजेंट लाइक दिस, वैसे ऊपर नीचे जाता हुआ लग रहा था कंसिस्टेंसी का। एंड बीच बीच में जैसे अपन ब्रेक्स लेते हैं, लाइक आफ्टर प्रीलिम्स ब्रेक लिया, तो एकदम से 8 आवर्स नहीं हो पाता था। एंड मेरा टारगेट भी जिस दिन 8 आवर्स होते थे ना, उस दिन मेरे को लगता था आज मैंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया है, आज बहुत मेजर टारगेट अचीव हुआ है। तो मेरा टारगेट था अगर 6 आवर्स भी हो रहे हैं मेरे, तो इट इज अ वेरी बिग डील। अगर मैं फोकस पढ़ाई कर पा रही हूँ 6 आवर्स में, तो आप देखिए कि अगर आपकी फोकस पढ़ाई 4 आवर्स में भी हो रही है, तो दैट इज गुड इनफ। ट्राई टू डू द सेम थिंग द नेक्स्ट डे, बट नॉट इंक्रीज इट सडनली टू 6 or 8 आवर्स। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ। मैंने आंसर राइटिंग करी थी प्रीलिम्स के पहले, बट मैंने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के बाद ही लगाई थी, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीटेड नहीं था। तो मतलब आई कैन नॉट रिकमेंड कि आप पहले दे ही मत बिल्कुल टेस्ट सीरीज, बट मैंने बाद में दी थी। एंड मैंने आई थिंक लिमिटेड टेस्ट ही लिखे थे। आई थिंक आई रोट 15 टेस्ट मैक्सिमम, एंड उस पे मैंने उससे भी रिविजन करा था एंड एड ऑन करा था अपने नोट्स के अंदर ही। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ। हाँ, सो आई थिंक ये हर सब्जेक्ट का थोड़ा मतलब शी इज आस्किंग कि हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली या होलिस्टिकली कैसे कवर करा जाए, क्या पॉइंटर्स हैं जो हमें अचीव करने ही करने हैं। तो मेरे लिए ये था कि मेरे को एनसीईआरटी खत्म करनी थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में सोच रखा था, बट वो इतनी रेलिवेंट नहीं लगी एंड में। देन सेकंड वो स्टैंडर्ड बुक मेरे को करनी ही करनी है, जो हिस्ट्री में काम नहीं करा, बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स आई डिड दैट। सेकंड थिंग वाज जो नोट्स थे, या तो क्लास नोट्स या कोचिंग मटेरियल, या फिर कोई भी दूसरे में ऑनलाइन नोट्स अगर रेफर कर रही हूँ तो दैट वाज माय नेक्स्ट थिंग। एंड द थर्ड थिंग वाज टुवर्ड्स प्रीलिम्स या मेंस कि मैं करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स थी उसको कर लूं, एंड दैट इज इट। उससे ज्यादा मैंने उस पर इतना वर्क नहीं करा। हम्म, 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 हाँ, बिल्कुल। हम्म, हम्म, हाँ, तो स्टार्टिंग में शी इज आस्किंग कि कैसे मैंने 1 मंथ के अपने टारगेट्स फिक्स करे। तो मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था मेरी रीडिंग स्पीड क्या है एंड मैं कितना कवर कर पाऊंगी। तो मैं एक रैंडम आइडिया लेती थी, जैसे कि मैंने खुद को पॉलिटी के लिए 3 मंथ्स दिए थे, एंड मैंने खुद को फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक के लिए 1 मंथ दिया था, एंड वो काफी कम पड़ा था मेरे लिए। तो मैं उसको फ्लेक्सिबली चेंज कर लेती थी। इससे मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल एक फाइनल टारगेट रखती थी कि फॉर एग्जाम्पल दिसंबर है, तो दिसंबर से पहले पहले आई वांट टू फिनिश माय जीएस। दैट वाज द टारगेट, जिसको मैं कितना भी फ्लेक्सिबल करूं, बट ये किसी तरह करना ही है खत्म। आई एम फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही लिया, तो आई डोंट नो व्हाट टू रिकमेंड। बट इफ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस एंड अगर आप किसी टॉपर से कनेक्ट कर सकते हैं उनके टेलीग्राम चैनल से, सो कनेक्ट टू दैट एंड बिल्ड अपॉन योर ऑप्शनल एज वेल। मतलब जो आपका है उसके ऊपर आप करंट अफेयर्स से उसको लिंक करते जाइए। आई डोंट नो व्हाट योर ऑप्शनल इज। व्हाट इज योर ऑप्शनल? ओके। ओके, सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार डिसाइड करें विच ऑप्शनल यू वांट टू गो फॉर। बट सिंस यू आर डूइंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की भी टच में रहना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस।
तो उसको थोड़ा थोड़ा रीड करते रहे आई थिंक, एंड जो ऑप्शनल है फॉलो द टॉपर स्ट्रैटेजी ऑन इट, बिकॉज काफी टॉपर्स दे चेंज देयर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रेजुएशन, सो आई थिंक दैट कुड बी हेल्पफुल। किसी एंथ्रो या पीएसआईआर मतलब उनकी स्ट्रैटेजी देखिए जिन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज करा है, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प। थैंक यू सो मच। So I did not begin with it integratedly क्योंकि prelims में time था, sorry, prelims में time था and मेरा focus था कि मेरे को एक बार mains के लिए करना है, but thankfully syllabus काफी overlap होता है, तो जैसे अगर history भी पढ़ रही हूँ तो थोड़ी prelims की preparation होती रहती थी। Any other question? Exactly. So I think she's asking कि distractions को कैसे manage करा जाए, एंड ये मेरे लिए भी बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सोशल मीडिया हटा दिया था कि मैं सोशल मीडिया पे रहूंगी ही नहीं, बट आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग एक डिस्कनेक्ट फ्रेंड से कि बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया रखा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंस्टाग्राम था, तो मैंने उसमें टाइमर सेट कर लिया था 15 मिनट्स का कि 15 मिनट से ज्यादा मेरे को यूज नहीं करना है। कई बार मैं उस पर पासवर्ड डाल के उसको इंक्रीज कर देती थी बट कोशिश रहती थी कि एटलीस्ट 3-4 दिन तो ये फॉलो हो जाए कि 3-4 दिन तो उससे डिस्कनेक्टेड रहूं। बट आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो मैंने मेरी पढ़ाई वैसे भी 8 आवर्स की लिमिट कर रखी थी कि बाकी डिस्ट्रैक्शंस को भी मैं 8 घंटे दूंगी और सोने को 8 घंटे दूंगी। मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मतलब मेरी मॉर्निंग 8-9 बजे से शुरू होती थी, तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग देन, बट आई डिसाइडेड कि मैं ये टाइम रखूंगी क्योंकि जो पेपर्स हैं वो इसी टाइम पे होंगे, तो दैट इज वाई आई स्टडीड इन द मॉर्निंग। बट वैसे कॉलेज में आई यूज टू स्टडी एट नाइट। सो शी इज आस्किंग कि कैसे मैनेज करा जाए ऑप्शनल का, कि कैसे डिसाइड करा जाए सिलेबस के बेसिस पे या इंटरेस्ट के बेसिस पे। सो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ये एग्जाम मतलब बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, तो आप लेके चले कि आपको 2 से 3 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो व्हाट दैट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी, आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करेगा, बट साथ के साथ सिलेबस भी थोड़ी तो वैल्यू रखता ही है, क्योंकि अगर बहुत वास्ट सिलेबस हो जाएगा तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपका इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है किसी सब्जेक्ट में कि मतलब मेरे को पढ़ना ही ये सब्जेक्ट है, तो गो विद दैट सब्जेक्ट, आई वुड रिकमेंड। ओके, what is your option abhi, have you decided upon it? Okay, that is a very good subject. I love sociology myself. That was my second option for optional. I was deciding between psychology and sociology. So आप एक बार टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखिए एंड मार्क्स देखिए कि कैसे आ रहे हैं सब्जेक्ट में, सिलेबस कैसा है, एंड देन डिसाइड अपॉन इट। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ 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 बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो ही इज आस्किंग कि नोट्स कैसे बनाए जाए, क्योंकि नोट्स बनाते हुए हमेशा ही लगता है कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ छूटेगा। तो मैंने एक्चुअली कभी भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक भी नोट नहीं बनाया मेरी लाइफ में। जो मेरे पास नोट्स बने बनाए थे मैं वो रेफर करती थी या स्टैटिक बुक्स रेफर करती थी, बिकॉज मैं उसको अंडरलाइन करके बार बार पढ़ सकती हूँ, बट अगर मैं उसको लिखूंगी तो मुझे लगता था मेरा ज्यादा टाइम उसमें जा रहा है। आई वुडंट रिकमेंड इट फॉर एवरीवन, बिकॉज सबकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, सब लोग अलग वे में याद करते हैं। मेंस के लिए ऑन दी अदर हैंड ये लगता है कि कुछ ना कुछ छूटेगा, तो फिर मैं ऐसे थी ठीक है कुछ छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं टॉपिक कर रही हूँ उसको मैं अच्छे से कर लूँ। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी नोट मेकिंग के लिए। इट वाजंट वेरी क्लियर, एंड मैंने स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने जैसे टुवर्ड्स मेंस बनाए थे, एंड यस इवन फॉर प्रीलिम्स आई मेड नोट्स। वो ऐसे थे कि जो बहुत रैंडम फैक्ट्स नहीं निकलते कुछ कुछ मॉक्स वगैरह में, मतलब कहीं से कुछ नहीं सुना। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रीलिम्स में क्वेश्चन था मियावाकी मेथड का, वो किसी एक मॉक में पूछा हुआ भी था, तो वो मैंने एक जगह लिख लिया था, विच वाज आई थिंक 5 या 6 पेजेस के नोट्स टोटल प्रीलिम्स के लिए फॉर दीज रैंडम क्वेश्चंस। एंड अभी प्रीलिम्स में वैसे ही बहुत रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट कैन वर्क। अगर आप साल मतलब स्टार्टिंग से अगर बिल्कुल रैंडम चीजों के बना ले विच इज नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस पर से,
but that you can do if you want. Thank you. Any other question? So because my optional was psychology, and I would say I had an advantage in psychology because my parents are from a psychology background as well. तो मैंने उसको सिर्फ 3 months दिए थे अपने optional को starting में. It extended to 6 months, but I finished it, and उसके बाद I did not touch optional till my prelims in October 2021 when I failed in that, and उसके बाद I did it again, and then उसके बाद after prelims I did it. तो मतलब मेरी बहुत fragmented study थी optional and GS की. जब मैं optional कर रही थी तब मैं GS इतना नहीं देख रही थी, other than जो current affairs देखे जा रहे थे. That was it for me. Yes. सो ऑप्टिमल मैं हमेशा नहीं रख पाती थी, जैसे कोशिश करती थी ऑप्टिमल रखने की. तो एज आई सेड, एक चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, गुड स्लीप. आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट 8 to 9 hours ऑफ स्लीप. तो मेरे को ये था कि मेरे को इतनी देर तो सोना ही सोना है. तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ये लगता है ना कि हम स्लीप रिड्यूस कर लें, पढ़ाई को ज्यादा टाइम दे दें, तो वो मैंने कभी नहीं करा, एटलीस्ट फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट. फिर उसके बाद सेकंड थिंग वाज जो चीज़ आप एंजॉय करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, उनसे बात कर ली, या फिर आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माय डॉग, तो उसके साथ खेल लिया थोड़ी देर. कभी कभी मेरी मम्मी मेरे को मेडिटेशन फोर्स करके करवा देती थी, तो वो हो जाता था कभी कभी. एंड दीज वर अ फ्यू थिंग्स आई डिड. यू गो फॉर अ वॉक, यू एक्सरसाइज अ लिटिल. तो मतलब जो स्ट्रेस के बेसिक आउटलेट्स होते हैं, कि उसको स्ट्रेस बस्टिंग आउटलेट्स जो होते हैं, वो आप थोड़े थोड़े इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डे में. Any other question? Can you please repeat? I can't hear you. हाँ. Exactly. सो शी इज़ आस्किंग रिविजन की क्या स्ट्रैटेजी रखें, बिकॉज अगर आप खुद को ही बोलते हो कि संडे को रिवाइज करेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है. तो आई केप्ट माई संडेज ऑफ कम्प्लीटली. मैं रिविजन के लिए रखती थी अपना मोस्टली सैटरडेज को थोड़ा बहुत रिवाइज, या फिर अगर मैंने पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लिया है तो 5 days का ब्रेक देती थी उस सब्जेक्ट पे. एंड उसके बाद जब मैं वापस उस सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ, तो एज ए सेट की PYQs के थ्रू मैं रिवाइज करती थी. ऑल्सो एक्टिव रिकॉल हेल्प. एंड मतलब बहुत स्पेसिफिक मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी रिविजन की, जब जैसे जो हो रहा था उसको मैं रिवाइज करती जा रही थी प्रायोरिटी बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए 2 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स थे, एक था हिस्ट्री और एक था इकोनॉमी, जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. तो मैंने उसको ज्यादा रिवाइज करा है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, कि अगर पॉलिटी का रिविजन छूट जाए तो कोई बात नहीं, बट लेकिन हिस्ट्री और इकोनॉमी का नहीं छूटना चाहिए. दैट इज हाउ आई डिड इट. हाँ. तो शी इज आस्किंग कि अगर 1-2 हफ्ते बाद भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं काइंड ऑफ उसमें क्या था. तो आई वुड से हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, उसको फिर भी जल्दी जल्दी करना है. व्हेन इट गोज इन फ्रंट ऑफ आवर, मतलब अपनी आंखों के सामने से जब 3-4 बार निकलेगा कोई मटेरियल, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें याद रहेंगी. एंड मान लो अगर आप 100 चीजें याद कर रहे हो, तो आपको टेस्ट के लिए तो रियलिटी में 20, 30, 40 एट मैक्सिमम याद रहेगी. सो मतलब काइंड ऑफ गेट कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि हमें सब कुछ याद रहने नहीं वाला, बट वी विल डू आवर बेस्ट कि जितना याद रह सकता है, दैट विल बी गुड. थैंक यू. हाँ. Okay. I will tell you a technique which I thought I'll mention at the end of the seminar, जो मैं करती थी, which is called the PQRST technique. ये हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. इट इज़ अ टेक्निक फॉर मेमोराइजिंग थिंग्स. P is प्रिव्यू. आप मटेरियल को प्रिव्यू करो, आपको रीड नहीं करना है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल मैं फंडामेंटल राइट्स देख रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी फ्लिप करके देख लूंगी ब्रॉडली कि क्या राइट्स हैं वो. फिर मैं क्वेश्चन करूंगी कि मैं देख लूंगी PYQs क्या थे उसके ऊपर, ताकि पता पड़ जाए कि क्या चीज है. तो मैं 2 बार ऑलरेडी मटेरियल को देख चुकी हूँ इन अ वे, और मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है अभी तक लेकिन मटेरियल में क्या है. देन आई रेड द मटेरियल. तो मेरी रीडिंग उस पॉइंट पे होती थी कि
ठीक है, अब मेरे को इस चीज को रीड करना है. एंड देन एस इज सेल्फ रिविजन. तो रीड करने के बाद ये जो रीडिंग और सेल्फ रिविजन वाला टाइम है ना, इस पे ज्यादा टाइम मैंने दिया था कि इस पे मेरे को ज्यादा टाइम लगता था. एंड देन टेस्ट जो मॉक्स वगैरह के थ्रू होते थे, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. कई सारे सब्जेक्ट्स में, नॉट ऑल ऑफ देम, क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्ट्रैटेजी और टीडियस सी हो जाती है. बट मेरी कोशिश ये थी कि प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को मैं फिर भी टाइम ज्यादा दे देती थी, जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स नहीं थे उसको मैं जल्दी जल्दी में निकाल लेती थी. हम्म. हम्म. हाँ. हाँ. हम्म. हम्म. हाँ. तो मैं एक्चुअली क्या कर, जैसे आप पूछ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, मैं दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ती थी ताकि एक मतलब डिवाइडेड रहे मेरा डे और मैं एक सब्जेक्ट से बिल्कुल स्टिक नहीं हो जाऊं. प्लस मुझसे पढ़ाई भी नहीं होती थी एक ही सब्जेक्ट में कंटिन्यूस. तो इफ यू कैन डू, आप एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर लीजिए जो थोड़ा लाइटर हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हैं इकोनॉमी, तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी गवर्नेंस पढ़ लीजिए क्योंकि उसका कोर्स इतना ज्यादा है नहीं. एंड एक थोड़ा सा ब्रेक मेंटेन हो जाएगा उससे. हम्म. हम्म. Yes, मैं कोशिश करती थी जो क्वेश्चन एक बार हमें उसको बार-बार रिपीट करना है. हम इंडिविजुअल लेवल पे कई क्वेश्चन बार-बार रिपीट करते हैं. थोड़ा सा तो मैं इंडिविजुअल हर किसी को रिप्लाई देती नहीं नहीं, इट्स ओके. हम एक्चुअली क्या बनने वाले हैं, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, तो एक से जो लर्निंग है वो तुरंत कैच कर ली, इस तरह का. अदरवाइज मैं सर को अदरवाइज मैं सर को मेरा मेल एंड आईडी प्रोवाइड कर दूंगी. आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो. आई विल ट्राई एंड रिप्लाई एज फास्ट एज आई कैन ऑन दैट. एनी अदर क्वेश्चन? ओके. हम्म. 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 ओके. ओके. सो शी इज आस्किंग कि ऑप्शनल के लिए कोचिंग ले या नहीं ले, एंड सेल्फ से हो सकता है या नहीं हो सकता है. आई थिंक दैट इज द जिस ना, है ना. सो फॉर मी, मैंने कभी कोचिंग ली नहीं साइकोलॉजी के लिए. मैं आपको ये बता सकती हूँ व्हाट यू कैन फॉलो. प्रोबेबली व्हाट वर्क फॉर मी वाज कि मैंने उसको एक बार खुद पढ़ लिया था. एंड मैं जब आंसर्स लिखती थी, तो जो काफ़ी कोचिंग्स डालती रहती है मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो उसके थ्रू मैं देख लेती थी कि क्या मेरा सही में वो टॉपिक कवर हो पा रहा है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज भी आई थिंक डले हुए होते हैं काफ़ी साइट्स पे. तो वो आप देख लीजिए एंड डू इट फॉर 1 चैप्टर ओनली. एंड देखिए इज इट ओके फॉर यू कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी खुद से आ रही है या नहीं आ रही है. अदरवाइज यू कैन गो फॉर कोचिंग और अदर गाइडेंस मेथड्स इन दैट सब्जेक्ट. ओके. तो मैंने एक्चुअली मेरी शी इज आस्किंग आंसर राइटिंग फॉर ऑप्शनल्स. तो मैंने मेरी आंसर राइटिंग ऑप्शनल्स की एक्चुअली कभी प्रीलिम्स के पहले नहीं करी थी, प्रीलिम्स के बाद ही करी थी. एंड आई स्टार्टेड विथ अ टेस्ट सीरीज. दैट टेस्ट सीरीज डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी क्योंकि वो PYQ बेस नहीं थी बहुत. तो आई डिड नॉट टेक एनी टेस्ट सीरीज. मैं बस जो PYQs थे उनको सॉल्व करती रहती थी, जो प्रीलिम्स क्लियर होने के और मेंस के पहले का ड्यूरेशन था. तो या तो मेंटली उसको बस ऐसे ही पॉइंटर्स लिख लिए कि मैं इस क्वेश्चन में ये लिख के आऊंगी, या फिर मैं एक्चुअल में कुछ कुछ सॉल्व कर लेती थी. एंड मैंने इतना सा ही करा था मेरे ऑप्शनल में. थैंक यू. That is my fear actually. That is something I feared before prelims and mains both, कि ह्यूमन ज्योग्राफी की इंडस्ट्रीज के क्वेश्चंस एंड रिसोर्सेज के क्वेश्चंस कैसे कवर होंगे. मैंने इसमें सिर्फ NCERT पे रिलाई करा था एंड मैं और कुछ नहीं करके गई थी क्योंकि मेरे से ऑलरेडी सिलेबस खत्म नहीं हो रहा था. मैंने मुझसे कि हो सकता है नहीं आए, हो सकता है आए, तो थोड़ा बहुत ही लिख के आ जाऊंगी बस इसके अंदर. तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं थी, बट इतना ही मैंने इसके अंदर करा था. थैंक यू. प्रीलिम्स में ओके. बिकॉज इन्वायरमेंट बहुत वाइड है. तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने आई थिंक शंकर के नोट्स जो थे सबसे पहले वो पढ़े थे बेस बनाने के लिए. NCERTs जो थी ज्योग्राफी की, उससे काइंड ऑफ इन्वायरमेंट का बेस बन गया था.
एंड उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स पे ही रिलाई करा एनवायरनमेंट पे, मैंने उसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं, बिकॉज करंट अफेयर्स में मोस्टली जो कोचिंग की मंथली कंपाइलेशन है उसमें स्टैटिक पार्ट कवर्ड रहता है थोड़ा थोड़ा, तो दैट इज वॉट आई डिड। बट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वेरीड आए थे। एंड आई थिंक एक देयर इज दिस साइट डाउन टू अर्थ, काफी लोग उसको भी रेफर करते हैं बीच बीच में, लाइक वंस अ वीक और वंस एवरी 2 वीक्स, टू गो थ्रू कि क्या चीजें न्यूज में आई हैं। तो आई थिंक यू कैन ट्राई फॉर दैट। बाकी तो आई डोंट रियली नो, मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग एनिमल प्लैनेट देखना चाहिए उससे कवर होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जो बायोस्फीयर रिजर्व्स थे, टाइगर रिजर्व्स थे और नेशनल पार्क्स थे, मैंने सिर्फ ये 3 करे थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो देयर आर मोर देन 500 इन इंडिया, तो वो तो वैसे ही करना पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा था। एंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी है, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे बस पीटी के अंदर ही, कि अच्छा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी से रिलेटेड है तो वहां पे वो लिख लिया। एंड दैट इज व्हाट आई डिड। एंड उसके अंदर मेरे को याद नहीं रहा था एंड में, सो आई डोंट नो वेदर दिस वर्कड और नॉट, तो मैं वो स्किप करके आई थी वो वाले क्वेश्चंस। नो फॉर यू वर आस्किंग। हम्म 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 सो आई कैन एक्सप्लेन दिस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटी। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में मैंने मेंस के क्वेश्चंस देखे एंड जो प्रीलिम्स के थे पीवाईक्यूज वो देखे। एंड जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज एक काफी रेपिटेटिव थीम थी, या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होता है पॉलिटी के प्रिंसिपल्स का। फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर हम राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल देखते हैं, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पे मैंने पीवाईक्यूज के थ्रू ही पता करा था कि क्या है। एंड कुछ जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी करने में, उस पे मैंने ज्यादा फोकस करा था, इवन इफ दे वर्ंट रेलेवेंट, फॉर द ऑफ चांस कि क्या पता आ जाए। तो मोस्टली फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यू कंपाइलेशन आई थिंक बहुत कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं। वैसे खुद से एनालिसिस मैंने कभी नहीं करा था, बस वो कोचिंग वाला निकाल लिया था, वरना फिर वो टाइम ज्यादा लग रहा था उसके अंदर। एनी अदर क्वेश्चन? यस। फॉर सीसैट, सो एज आई सेड आई रेफर टू यूट्यूब वीडियोज जिसमें वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे फॉर मैथ्स, तो मैं बेसिकली वो करती गई एंड मैंने मॉक्स दिए थे एंड दैट वाज इट फॉर सीसैट। अब इफ आई हैव टू प्रिपेयर अगेन फॉर द एग्जाम, आई थिंक आई विल ऑल्सो गो थ्रू, आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय सम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, कि गो थ्रू सम ऑफ द बेसिक कैट के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, बिकॉज वी नेवर नो कि इज इट गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट और नॉट। तो आई थिंक दैट वुड बी माई अप्रोच नाउ। थैंक यू। मैंने कभी रेफर नहीं करी, आई ओनली रेफर टू पीवाईक्यूज एंड जो मॉक्स थे, उसके अलावा आई डिड नॉट ट्राई एनीथिंग एल्स फॉर सीसैट। फॉर न्यूज़पेपर आई डिड नॉट, बिकॉज मैं न्यूज़पेपर को 30 मिनट्स ही देती थी, एंड आई थिंक आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओ, इससे अच्छा कोचिंग के बने बनाए यूज कर लो। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता था, आलस आ जाता था बनाने में मेरे को। सो आई थिंक दैट वुड बी अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू डू, दैट यू रेफर टू दोज मटेरियल्स। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज ईयर वेर आई वुड से कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बाय विजन इज, जो वीकली एक उनका टॉपिक आता है, उसके अंदर एक एंड में टॉपिक एट अ ग्लांस होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है GS3 का टॉपिक, तो वो टॉपिक एट अ ग्लांस में देख लेती थी एंड देन आई यूज टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। तो एक पेज का ही मैं बस नोट बनाती थी, which might be helpful in prelims, but mostly they were helpful for mains. सो यू कैन रेफर टू दैट। बट अगर आपके पास स्टैटिक नोट्स हैं बने हुए, तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी मंथली में आता जा रहा है उसी के अंदर एड ऑन करते जाओ, दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी टू अप्रोच इट। हाँ,
शी इज आस्किंग कि मैं आंसर राइटिंग कितने टाइम बाद रेगुलरली करने लगी. मैंने सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद रेगुलरली करी, उससे पहले मैं बिल्कुल इरेगुलर थी आंसर राइटिंग में. बस मेरे को एक आइडिया लगाना था कि कैसे लिखते हैं आंसर्स, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रहा था. सो वंस आई क्लियर्ड इट, दैट्स व्हेन आई ऑप्टेड फॉर टेस्ट सीरीज एंड started writing answers regularly. Any other question? Hmm. 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 हाँ, exactly. Hmm. सो शी इज आस्किंग कि कैसे वैल्यू एडिशन के लिए जो डेटा और रिपोर्ट्स होती हैं उनको यूज करा जाए. इसके लिए मैंने कभी रिपोर्ट और डेटा यूं अलग से नहीं पढ़ा. जो मंथली कंपाइलेशन में मेंशन था या फिर जो ईयरली कंपाइलेशन थे मेंस के या प्रीलिम्स के, वो मैंने रेफर करे थे. एंड उसके अंदर मैं वो स्टार बना लेती थी कि बस इसको मेरे को लिखना है. उससे ज्यादा मैंने कभी एफर्ट नहीं डाला क्योंकि मेरा बेसिक खत्म नहीं हो रहा था. सो आई डिड नॉट वांट टू गो डीप इनटू वैल्यू एडिशन. थैंक यू. Any other question? I did prefer yearly compilations क्योंकि मंथली में मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी. तो कई बार मैं करती थी, कई बार नहीं हो पाती थी एंड पाइल अप होती जाती थी वो. तो दैट इज व्हाई आई प्रेफर्ड द ईयरली वन. तो मैं कोशिश करती थी एटलीस्ट कुछ तो मंथली हो जाए ताकि कनेक्ट रहे. बट ओवरऑल आई थिंक द ईयरली वंस आर बेटर. एनी अदर क्वेश्चन? This is a very interesting question. So what was motivating me was basically my dream job कि मेरे को ये अचीव करना है. एंड उसके अलावा आई थिंक कई बार ऐसे होता था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाती थी तो डीमोटिवेटिंग लगने लग जाता था या मार्क्स नहीं आते थे. फॉर एग्जाम्पल इन माई प्रीलिम्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने मॉक्स दिए हैं उसमें आई हैव स्कोर्ड एज लो एज 20 मार्क्स. सो वो बहुत डीमोटिवेटिंग टाइम होता था ना. उस टाइम पे लगता था ठीक है यार कोई बात नहीं, 5 मार्क्स बढ़ाने का टारगेट रखते हैं, नेक्स्ट में मेरे को 30 स्कोर करना है, 25 स्कोर करना है. सो माई टारगेट एट, मतलब मेरा मोटिवेशन इंक्रीज करने का तरीका फिर ये था कि नेक्स्ट मॉक में मेरे को इंक्रीज करना है बस मार्क्स. एंड अगर उसमें और कम हो जाते थे, अगर 18 आ गए, तब फिर थोड़ा सा रोना धोना हो जाता था और कुछ नहीं. आई डिड नॉट रेफर टू एनी ऑफ दीज मैगजीन्स. मैंने सब्सक्राइब कर रखी हैं, उसकी एक बड़ी सा बंडल बना हुआ घर पे पड़ा है. तो आई हैवंट रेफर टू देम क्योंकि इतनी रीडिंग के बाद वो टाइम ही नहीं मिल रहा था रेफर करने का. Hmm. 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 It was a very naive decision. This thought came in. Actually, civil services का नहीं था, foreign services का था. I participated in an MUN and I was like कि मुझे real MUN में, real United Nations में represent करना है इंडिया को. And I got to know it is through the civil services, and that's how this dream started. Any other question? हाँ, आई वुड से कि अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आपकी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है, जैसे मुझसे नहीं हो रही थी, तो वो बहुत बेटर रहेगा. बट अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो खुद को फोर्स मत कीजिए वो पढ़ने के लिए. जस्ट स्टे इन टच विद द करंट अफेयर्स किसी ना किसी तरह न्यूज़पेपर के थ्रू. एंड देन उसके बाद जो ईयरली कंपाइलेशन है उसको डेफिनेटली फिर पढ़ना पड़ेगा. उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लग जाएगी. तो इफ यू कैन बिल्ड कंसिस्टेंसी, दैट इज द बेटर ऑप्शन. Any other questions? Anyone? The very first attempt, I would say कि don't make the mistakes that I made. Cover your syllabus and UPSC जो है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है. कोई गारंटी नहीं है कि कब होता है, कैसे होता है. But work hard, because if you work hard, it's not going to go waste. You will always have that knowledge with you. But I don't have a strategy for clearing it in first attempt क्योंकि मैंने खुद ने नहीं करा है. Any other question? Anyone? Yes. मैंने आज तक जीएस का कोई भी नोट्स नहीं बनाया. मेंस के लिए ये होता था बस कि फॉर एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड न्यूज में था, I2U2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज में था,
तो उसके लिए मैंने एक एक पेज के नोट्स बनाए थे, बट वो टोटल और बहुत रैंडमली बनाए थे, बहुत फिक्स्ड वे में नहीं बनाए थे. सो आई थिंक वो टोटल नोट्स मेरे आई थिंक 50-60 पेजेस से ज्यादा के नहीं थे. एट द एंड ऑफ द डे दे weren't that relevant. एंड आई थिंक अगर मैं मे बी कंपाइलेशंस के नोट्स बना लेती वो बेटर आइडिया रहता, या फिर मैं स्टार्टिंग से नोट्स बनाती तो वो बेटर आइडिया रहता. बट ड्यू टू सेवरल सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट गिव इनफ टाइम टू नोट मेकिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज मेरे को थोड़ा सा टायरसम लग रहा था वो. PT 365 से मेंस में हाँ, मेंस 365 से. मेंस 365 तो सब कुछ कवर करती है, एवरीथिंग अंडर द सन दैट हैज बीन इन द करंट अफेयर्स, एंड एक दो क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा. एंड स्पेशली GS3 में काफी करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं. सो आई थिंक दे डेफिनेटली डू हेल्प इन बिल्डिंग योर बेस फॉर मेंस. बट मैं ये नहीं बोलूंगी अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली मेंस का पूरा हो जाएगा. आप स्टैटिक पे फोकस बिल्कुल मत भूलना इन दिस ड्यूरेशन. कीप रिवाइजिंग योर स्टैटिक नोट्स, एंड जो आपकी बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, उसको बार बार आप रिवाइज करें. एनी अदर क्वेश्चन? यस. I did not refer to Yojana or Kurukshetra. I subscribed to them, but I haven't read them even once. बिल्कुल ही लगता है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल जो बैकअप प्लान का आइडिया था वो मैंने मास्टर्स में इनफैक्ट एनरोल भी कर लिया था, बट मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी, यानी खुद में सेल्फ डाउट आ गया था कि क्या मैं एनरोल करी हूँ क्योंकि मुझसे नहीं होगा. सो आई हैड लेफ्ट मास्टर्स. इनफैक्ट आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ मास्टर्स एंड कंटिन्यूड विद दिस प्लान. देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैं खुद को 2 साल दूंगी बहुत अच्छे से तैयारी करने की, 2 अटेम्प्ट दूंगी. एंड अगर 2 अटेम्प्ट के बाद भी मेरे साथ ऐसा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, and then I do need to look for a backup plan because I wanted to also be financially secure, and I also wanted to do something, and because the exam is very unpredictable, मैं backup support करती हूँ, but I also say कि if you're very passionate about it, give 2 to 3 attempts passionately, and more if you feel कि you can and if you want to. So I would say personality में participate in a lot of extracurriculars. So personality development starts at the very beginning, जब आप छोटे बच्चे होते हो. तो उसके बाद what you can do is extracurriculars करो, interact with as many people as you can, develop a wide reading कि आप अलग अलग topics पे videos देख लो या फिर आप अलग अलग books पढ़ लो. I think that enriches your personality. And अगर आप किसी कोई आप sport खेलते हो या कोई एक activity करते हो which is different, so that also adds on to your personality. That is something you can do. It is a little vague answer, I know that, but I don't have any specific tips for it. Okay. I have done psychology honors. So my main subject was psychology only, and they did not ask कि मेरा minor subject क्या था, जो sociology था. अगर कहीं DAS में mentioned होता तो मेरे को पक्का tension होती, but because वो नहीं था, so I focused only upon it. So he is asking कि क्योंकि अगर और भी आपने subjects graduation में पढ़ रखे हैं तो उनको कैसे manage करा जाए. तो बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेनली साइकोलॉजी ही था, तो मैंने कभी सोशियोलॉजी पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट मैं बेसिक्स उसके करके गई थी एनसीईआरटी की, जस्ट इन केस उन्होंने इंटरव्यू में पूछ लिया दैट व्हाट इज योर माइनर, तो फिर मेरे को थोड़ा तो सोशियोलॉजी याद होना चाहिए. सो आई रेड थिंकर्स वगैरह जो है सोशियोलॉजी में, बेसिक मार्क्स एंड ऑल, कि आई विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस डिसेंटली, एंड इफ नॉट आई जस्ट से कि आई डोंट नो. एनी अदर क्वेश्चन? Those who have passed 12th recently, I would say college enjoy karo thoda. Because your college life is never going to come back, and you make the best friends in college. तो college enjoy करो, develop your personality. ये सोच लो कि आप personality test की तैयारी कर रहे हो, and enjoy in that manner. I'm sorry, it might not be something you want to hear, but sorry. Any other question? Sorry? Subject-wise book list. So, starting with history, spectrum मैंने पढ़ने की कोशिश करी, वो मुझसे पूरी कभी आज तक खत्म नहीं हुई,
एक तो बहुत बल्कि सी लगती है दिखने में, तो डर लग जाता था उससे. द सेकेंड थिंग इज कि मैं जो मेरे क्लास नोट्स थे वो पढ़ लेती थी हिस्ट्री में, एंड एनसीईआरटीज मैंने रेफर करी थी स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए. फॉर सोसाइटी आई रेफर टू मोस्टली जो करंट अफेयर्स मटेरियल था, या फिर थोड़े बहुत क्लास नोट्स मैंने बीच बीच में देखे थे, बट बिकॉज मैंने सोशियोलॉजी पढ़ रखा था तो मैंने उस पर भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था. फॉर ज्योग्राफी आई रेफर टू कम्प्लीटली क्लास नोट्स. मैंने उसमें एनसीईआरटी एक बार पढ़ी, फिर मैंने दूसरी बार देखी ही नहीं वो एनसीईआरटी, बिकॉज क्लास नोट्स में सब कवर्ड था. एंड ज्योग्राफी काफी वाइड सब्जेक्ट है कि कोई बहुत स्पेसिफिक बुक नहीं है कि ये पढ़ लो तो हो जाएगा. जैसे काफी कोचिंग मटेरियल भी है अवेलेबल, सो रीड एनी वन कोचिंग मटेरियल और योर क्लास नोट्स. देन अदर सब्जेक्ट फॉर पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल आई रेफर टू लक्ष्मीकांत, एंड उसके साथ साथ करंट अफेयर्स इन क्लास नोट्स. फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्टली करंट अफेयर्स, नथिंग एल्स, बट वो करंट अफेयर्स के थ्रू स्टैटिक बिल्डअप हो जाता था. देन फॉर गवर्नेंस आई रेफर टू कोचिंग नोट्स. इसमें मैंने विजन के कोचिंग नोट्स रेफर करे थे, जो एक पतली सी बुकलेट आती है गवर्नेंस की, दैट इज द वन आई रेफर टू. बट आई थिंक इट इज नॉट सफिशिएंट, सो एड ऑन करंट अफेयर्स से, कीप ऑन एडिंग ऑन जो एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है या जो न्यूज में आ रहा है इन दोज नोट्स इटसेल्फ. उसके अलावा फॉर सिक्योरिटी आई रेफर टू अगेन द क्लास नोट्स या फिर करंट अफेयर्स. इट टर्न्स आउट कि करंट अफेयर्स वर मोर यूजफुल इन सिक्योरिटी, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे. एंड फॉर which subject am I? Economy I refer to class notes only because it was my weak point and I wanted to develop it, and मैंने economy actually पढ़ा नहीं था 9th-10th के बाद से, so I refer to class notes and उस पे ही build up करा था. And for science and technology again I refer to basically the current affair magazines throughout the months, and जो मुझे relevant लग रहा था वो मैं लिखती जाती थी. As for ethics I refer to some notes from class, some from the coaching material, but I never prepared specifically for ethics because psychology और ethics का थोड़ा overlap हो जाता है. Especially I think topics like emotional quotient and attitude we already studied in psychology, so I never specifically prepared for it. Thank you. Yes, so P refers to preview, कि एक बार बस पेजेस पलट के देख लिए कि क्या क्या है इसमें टॉपिक्स. क्वेश्चन इज कि आई विल गो थ्रू द PYQs, क्वेश्चंस देख लिए. R इज बेसिकली रीडिंग थ्रू इट, कि मैंने रीड करके देख लिया वो मटेरियल क्या है. नाउ इसमें टाइम लगेगा रीडिंग वाले में. देन S इज सेल्फ रिविजन, कि खुद को रिवाइज करवाया, चाहे वो मैं एक्टिव रिकॉल कर रही हूँ या फिर वापस रीड कर रही हूँ, वॉट एवर स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू. एंड T स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग. इफ यू लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, मतलब इसकी काफी सारे फुल फॉर्म्स है. इट्स अ वेरी पॉपुलर टेक्निक दैट वी यूज इन साइकोलॉजी फॉर studying about memory of humans. P में तो मैं बस पेजेस पलट के देखती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स के ये 6 पार्ट्स हैं, तो इसमें क्या क्या है बस वो हेडिंग्स पढ़ती हूँ उसके अंदर में. क्वेश्चन में मैं PYQs देखती हूँ. इन दोनों पार्ट्स में इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बट इट जस्ट गिव्स यू वेरी वेग आइडिया कि जब मैं प्रॉपर्ली रीड करूंगी तो मुझे थोड़ा बहुत पता होगा, अच्छा इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है, इवन इफ आई डोंट नो डिटेल्स उस चीज के. सो दैट वाज PNQ से मतलब आप पूछे कि एलिमिनेट क्या कर सकते हैं रीड करते हुए आफ्टर डूइंग PNQ. तो मैंने एक्चुअली कभी एलिमिनेट नहीं करा, मैं इस वजह से करती थी ताकि मैं बस यूज टू हो जाऊं कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ उस मटेरियल के. तो मेरा एम एलिमिनेशन का नहीं था उसके अंदर. एनी अदर क्वेश्चन? For mains or prelims? Okay. So she is asking कि किस टाइम फ्रेम में आंसर्स मुझे लिखने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए वो. ओके ओके ओके. सो ओके, आई वुड से आपका ऑप्शनल आपके प्रीलिम्स के पहले पूरा खत्म हो जाना चाहिए. मेरा पूरा नहीं था बट मोस्टली मेरा खत्म था ऑप्शनल, सो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप दिसंबर या जनवरी की डेडलाइन रख लीजिए कि मेरे को तब तक अपना GS का एक बार पूरा खत्म करना है, एटलीस्ट वो चीजें जो प्रीलिम्स में आ रही हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप सिक्योरिटी फिर भी आपका रह गया तो कोई बात नहीं, बट बाकी सब चीजें कवर्ड होनी चाहिए. एंड देन उसके बाद फ्रॉम, सो आई थिंक इट इज ऑन 26th of May, right? So give yourself entire May, entire April,
एंड ऑल्सो मार्च, these 3 months तो पूरे सिर्फ प्रीलिम्स को देना, कुछ और मत करना. दैट इज व्हाट आई कैन रिकमेंड. वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी जो ऑलमोस्ट सब लोग रिकमेंड करते हैं, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट बिकॉज मैंने भी ये वीडियोस देख करके ही डिसाइड करा था. एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? आई एम सॉरी आई कांट सी यू. मेरे को अच्छा, ओके. आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैव क्लियर्ड इट. एंड इस साल का प्रीलिम्स देख के थोड़ी और शांति मिली थी कि पहले ही निकल गया. तो दैट इज हाउ आई फील एंड अ लिटिल एक्साइटेड फॉर FC नाउ, द फाउंडेशन कोर्स. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट. थैंक यू. Okay. Okay. I don't. You are asking basically कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, करंट अफेयर्स बेस्ड हो या फिर स्टैटिक बेस्ड ज्यादा हो. तो मैं इसमें तक गाइड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे जो दोनों ऑप्शन थे, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी काफी करंट अफेयर्स बेस्ड है एंड जो साइकोलॉजी है वो स्टैटिक बेस्ड ज्यादा है. आई वेंट विद साइकोलॉजी क्योंकि मैं उससे कंफर्टेबल ज्यादा थी. बट अगर आप अपने 2-3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि इन तीनों में इंटरेस्ट है, तो उस बेसिस पे एक बार टॉपर स्ट्रैटेजी देख के यू कैन डिसाइड व्हाट विल वर्क फॉर यू. आई होप दैट आंसर्स. थैंक यू. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? ऐसे के लिए फॉर माई बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर ऐसे वॉज बेसिकली कि मैं एक तो टॉपर्स के एसेज पढ़ लेती थी. सो बेसिकली जो टॉप स्कोरर्स हैं एसेज में, उनके मैं ऐसे पढ़ती थी, देखती थी क्या इन्होंने लिखा है ऐसा कि मतलब यू कैन गेट सो गुड मार्क्स इन इट. सो आई हैव सिक्योर्ड जस्ट अ लिटिल अबव एवरेज मार्क्स इन ऐसे. दे हैवंट बीन वेरी गुड. तो आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई कैन टेल यू व्हाट आई डिड. वो ये था कि मैं GS पूरा कवर कर रखा था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यूज करती थी जो मेरे को ऐसे में यूज करनी है. मैंने आई थिंक ऐसे के नोट्स बनाए थे थोड़े बहुत 10-15 पेजेस के कि अच्छा कोई भी ऐसे आया तो ये चीज तो रेलेवेंटली डाल सकते हैं. फिलोसफिकल ऐसे में ये फिलोसफी तो डाल ही सकते हैं. इतनी सारी डिफरेंट जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं वो मैं रेफर करती थी ऐसे के लिए. एंड बाकी एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जैसा जो अनुदीप सर ने बता रखा है वो फॉलो करा था. थैंक यू. अच्छा, oh, all the best to everyone. Any other question? Yes. I have never analyzed PYQs. मैं बस PYQ देखती थी, उसमें काइंड ऑफ ऐसा लगता है ना ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या फिर ये थीम रिपीट हो रही है, तो फिर मैं PYQs देखने के बाद एक्चुअली पढ़ती थी. तो पढ़ते हुए लगता था अच्छा ये क्वेश्चन तो पूछा गया है. सो दैट वाज माय एनालिसिस. कोई मैंने स्पेसिफिक उसका एनालिसिस नहीं करा, बट कोचिंग के ऑलरेडी बने बनाए जो एनालिसिस थे वो मैंने 1-2 बार देख रखे हैं. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? So she's asking if after clearing the exam, was the hard work worth it or does it seem all overrated now? I feel very happy to have cleared the exam. At the end of the day, it is a job. तो जर्नी तो अभी शुरू हुई है. मैं बताऊंगी 2-3 महीने बाद ट्रेनिंग के बाद की क्या है एग्जैक्टली. अभी तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड बाकी आई थिंक ऑल दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन सर्विस हैव सेड कि preparation phase is actually a nice phase as compared to your work phase. So let's see if it's true or not. So he is asking कि बाकी फील्ड्स में भी बहुत पैसे मिलते हैं तो यूपीएससी लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके पीछे क्यों भागते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक इफ यू आर एन ऑनेस्ट ऑफिसर इन यूपीएससी you will in fact earn less than those earning in private, and which is what the case should be. कि ठीक है, if you're passionate about the job, go for it. And I think एक पेरेंट्स का प्रेशर होता है, एक सोसाइटी का व्यू होता है यूपीएससी के एग्जाम को लेके, ओ बेटा यूपीएससी कर रहा है, बेटी यूपीएससी कर रही है. सो दैट इज अनदर थिंग, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल माइट गेट enticed by the idea. But I think
if you, and also another thing is कि UPSC जितनी diverse opportunities provide करता है, I don't think anyone else can. For example, IES में जो administrative services में जो diversity है, you're working in the health sector, education sector, all these different sectors, that can also be a very big enticing thing for people, that you want diversity in your work life. And जितना direct impact an IAS officer can have, the amount of power one has through the Indian administrative services, that is also something that inspires people. Thank you. Any other question? Yes, my first preference was the foreign services. Second was the administrative services, and third, the revenue services, income tax. I don't have a favorite country other than India. No, please don't clap. For foreign services, so basically I am learning French and also Korean. So had I been posted to either of those two countries, I would have definitely found it easier. But had it been any other country, I would have loved in learning the language. Thank you. Any other question? Yes. From a science background. आप science background से हैं. अच्छा, okay. So मतलब मेरे को तो starting में preparation के लिए लगा था काश मैं science पढ़ लेती, because I struggled with science and technology. So I don't think background इतना matter करेगा, क्योंकि सबको पढ़ना पड़ेगा. And अगर आप humanities से भी हो, तो for example आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, लेकिन याद तो रहती नहीं 2-3 साल बाद कि क्या पढ़ा है एग्जैक्टली. आई थिंक एवरीवन इज मोर और लेस ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड. आपकी फ्रेंड को मैथ्स में बहुत एडवांटेज मिल जाएगी, लेकिन हाँ. हाँ हाँ, आई एग्री. सो बेसिकली आपका एक फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए, जो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल था, कि और वो फ्रेंड ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो बोले कि भाई पढ़ लो अब तो. सो एक दूसरे से एक सेल्फ एंड काउंटर अकाउंटेबिलिटी होती है ना, कि जैसे मेरे साथ भी होता था कि संडे का ब्रेक लिया, वो कई बार मंडे और ट्यूसडे भी एक्सटेंड हो जाता था, क्योंकि मैं संडे ब्रेक्स तो हमेशा लेती थी. आई नेवर स्टडीड ऑन संडेज एक्सेप्ट जब प्रीलिम्स या मेंस पास आ रहा है. तो आई थिंक उसके अंदर ये होता है कि एक तो फ्रेंड्स वगैरह पूछते थे, अच्छा कितनी पढ़ाई हुई, ये टॉपिक हो गया क्या तेरा? तो अच्छा. अगर आप सब फ्रेंड्स का यही डाउट है, आई थिंक एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे बहुत सीरियस लोग हैं. आप लोग भी, आई एम श्योर आप लोग बहुत सीरियस हो. एंड मतलब मैं भी सीरियस थी, फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती ही थी. तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस. थैंक यू. देखो, मेरी जो फर्स्ट ईयर था ना प्रिपरेशन का, मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ी. वो गवर्नमेंट और एक्सटर्नली कंट्रोल था, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, तो इधर उधर जाना वैसे ही नहीं हो रहा था. एंड देन उसके बाद आदत बन गई थी घर में बैठने की. बट उसके बाद लाइक फॉर एग्जाम्पल इन माई नेक्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट 2022 के टाइम पे एवरीथिंग हैड ओपनड अप एंड आई वांटेड टू गो आउट. तो मैं संडेज हमेशा ऑफ रखती थी. इफ आई वांट टू मीट फ्रेंड्स, आई विल मीट देम एटलीस्ट वंस अ मंथ और ट्वाइस एवरी मंथ. या तो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ एक आउटिंग में कर लेती थी. तो आई थिंक अगर बीच बीच में एक बैलेंस रहता है ना, तो इतनी ज्यादा वो टेम्पटेशन नहीं होती कि जाना चाहिए, जो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में होती थी. क्यों? एनी अदर क्वेश्चन? I scored 190 in the interview. Optional में 284 in psychology. Any other question? So if no one has any other question, I'll just say all the best for the prelims that you're writing. I wish you the very best in this exam. I hope you... नहीं सर. And I will say something which is very easy to say from this side of the room. That is, it is just a job. It is, मतलब मेरे को बहुत दुख होता अगर मेरा नहीं होता तो, no doubt. But at the end of the day, it's a part of your life. And I'm sure, मतलब ये सब पढ़ के you will be much better citizens. And
I hope that I'll see you all in the civil services. We'll be colleagues soon. So all the best to you all. Okay, thank you.